So a very good evening to everyone. I hope you guys are all doing good. So welcome to Pride of India 2023, and this is our first training session. This is how you begin from the scratch. So first of all, congratulations to everyone for completing your audition round successfully. It was an immense pleasure to have you on board. With you interesting interactions and introduction, we have got you. So thank you so much for all you shared. आप लोगों ने अपना पहला कदम ले लिया है and now it's our responsibility to make sure that every step taken for your own worth is worth it and taken care for responsibly, and would request all of you whosoever to start your video and please mute yourself. अपने कैमरे ऑन कर लीजिए and mic mute कर दीजिए. And we have some smile across the screen. And you know, this is just the start. This is how we begin our process. And the most awaited training sessions have started. This is your first one and most basic one, from which we will make sure कि आपको आगे किसी भी training session में कोई problem ना आए. So talking about the platform, Pride of India is not just about the crown. I know the final designation. आप लोगों ने already imagine कर लिया होगा अपने आप को crown में. But this platform is not just about the crown. We are trying to build a community of like-minded women who are talented and passionate. So थोड़ी बहुत भी insecurity अगर audition के बाद बची है कि मुझे पहले का कोई experience नहीं है इस field से, you can leave it on the back seat. ये आपका time है to make sure कि आप अपनी एक पहचान बना सको. लोग आपको आपके काम से एंड आपकी पर्सनालिटी से जाने, एंड दैट इज वेयर द टीम इज गोइंग टू हेल्प यू. सो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, एंड ऑलरेडी यू ऑल आर इंस्पायरिंग वुमेन जो प्रूव करती हैं एज इज जस्ट अ नंबर. क्योंकि यहाँ हमारे साथ 14 to 15 इयर्स से लेकर 45 to 46 इयर्स के वुमेन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ बिना किसी डिफरेंस की खड़ी हैं. So you have to shine bright, no matter what your height is, what your weight is, or any such barriers. हमारे लिए barriers matter नहीं करते हैं. The only thing that matter is how passionate you are. और यही चीज exactly आप लोगों ने prove करके आप लोगों ने अपने audition clear किए हैं. Because this is what the first thing that we have mentioned during the audition, that we are not looking for how much you already know. सिखा हम आगे देंगे आपको during journey. The only thing we need out of you guys is sincere cooperation and complete assistance understanding towards the whole process. Because I'm sure coaching सबको same मिलने वाली है, but आपकी self study, आपका individuality and personal direction towards each of these classes is going to make you winner. So यही फर्क है आपके एक दूसरे से, because there is no comparison between how much you are performing as compared to someone else, but it's all about just you and your progress. So किसी और से compete करने के बजाय आपको ये सोचना है कि आप खुद से compete कर रहे हो. और आज जैसे आप first session में हो और अब आप like after all your training sessions are done, you are performing for talent rounds. वो ग्रोथ कैसी होती है और आप उसमें कितना एफर्ट्स डालते हो, कितना हार्ड वर्क डालते हो, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. एंड यस, प्लेटफॉर्म इज अ कम्युनिटी जिसके 2023 का फेसअप लुक आप सब बनने वाली है. And this year we are going to create a history. We are going to crown 300 winners on this platform this year itself. So to ensure visibility and all credibility to any kind of person or woman who has put her efforts in this process. So इस साल आप लोग हमारे साथ एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने वाली हैं, बिकॉज आपकी क्राउनिंग 3 लेवल्स पे होने वाली है, दैट इज सिटी लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. बिकॉज आई एम श्योर कि एक अंदर ही अंदर दिल में सपना होता है कि मैं पहले अपने सिटी को रिप्रेजेंट करूं. आप जहां से हो पहले आप उस जगह को रिप्रेजेंट करो, एंड देन स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल. So that is how the process is going to be, and we are refreshing it all over again and again. So let's not delay the process at all. Let's just start with what is the journey holds. So first of all, I would tell you one thing, that winning is not always important. जीतना ना जीतना बहुत बाद की बात है, but getting to showcase your talent on the right platform is a very huge deal, because this is how the networking works. बिकॉज आई एम श्योर आप सबका कहीं ना कहीं डर था कि ये फेक तो नहीं है. सो अब आपके माइंड में ये सब निकल गया होगा. नाउ वी ऑल आर अ फैमिली, दैट मैटर्स, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन अ न्यू जर्नी स्टार्ट्स.
Why do I say that? Because it's a platform के through आपको एक मौका मिलेगा to connect with the professionals across the country. This include your trainers जो आपको train करने वाली हैं and getting to know more of them, getting to understand more of the experts in their field. So we could take this forward step by step, where you will also get to showcase your profiles and talents directly to these trainers. बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म पे देयर इज सो मच रिलेटिविटी दैट उन्हें फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे फील्ड से रेलेवेंट लोग कौन से हैं. दैट इज व्हेन यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसमें वेरीफाइड मेंबर्स हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू ईच वन of you to understand that okay, I don't have to worry what I'm just playing here because it is the safest place. So people here will notice what you are showcasing. So without any further delay, we would just start the process, and I would just tell you what all includes like in your city level, state and nationals. So आप सबके सामने स्क्रीन आपको दिख रहा होगा which is displayed, and further ये आपको ये शेयर कर दिया जाएगा PDF आगे. So when I talk about this platform that we have covered almost every state across the country, पूरे इंडिया से हम बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस ले चुके हैं, हर स्टेट एंड हर सिटी से लोग रजिस्टर कर रहे हैं. So पहले मैं आपको बता दूं, इस ईयर more than 300 contestants are going to get a chance to win the crown on the single platform. So ये इस ईयर पॉसिबल है क्योंकि हम ज्यादातर प्रोसेस ऑनलाइन रखते हैं वर्चुअली, so that everyone could get a chance to participate. वो किसी भी जगह पे बैठे हो, किसी भी सिटी में, किसी गांव में बैठे हो, वो घर बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल सिटी लेवल. तो आपका बाकी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल फिनाले दिल्ली में होगा. सो हमारे कंटेस्टेंट में बहुत सारे प्रोसेस हैं हमारे कॉन्टेस्ट में सिटी एंड स्टेट लेवल पे. कुछ कंपटीशन होते हैं जो विद इन फ्यू डेज कंप्लीट कर दिए जाते हैं, बट हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, आप हमारे वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. उसके बाद आपका ऑडिशन हुआ था, दैट ऑल्सो हैपेंड ऑन जूम. उसके बाद आपको आपकी ऑडिशन रिपोर्ट कार्ड मिली, ई सर्टिफिकेट मिला, एंड ऑन द बेसिस विच वी कंप्लीटेड योर पार्टिसिपेशन प्रोसेस. सो उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग सेशंस हैं एंड ग्रूमिंग सेशंस हैं, वी आर गोइंग टू कीप दिस वर्चुअल राइट नाउ. सो नाउ थिंक आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई है, आपको पता है कि आपको क्या पहनना है, किस ड्रेस पे कैसा मेकअप है, रैंप के लिए कैसी ड्रेस वियर करनी है, किस टाइप के सैंडल्स एंड स्टिलेटोस वियर करने हैं. सो यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर टैलेंट राउंड्स व्हिच आर कमिंग फर्दर. लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको वर्चुअली कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑफलाइन खुद को प्रेजेंट करना एंड वर्चुअली खुद को प्रेजेंट करने में बहुत डिफरेंस है. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ऑफलाइन में आपको पता है आप स्टेज पे आओगी, परफॉर्म करोगी, जूरी मेंबर्स आपको जज करेंगे. लेकिन वर्चुअली अगर आप कंप्लीटली विजिबल नहीं हो, अगर आपका मेकअप अच्छे से नहीं दिख रहा, या आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर वन कैटेगरी, दैट इज योर वर्चुअल प्रेजेंस. That is why I say that the complete selection process of Pride of India 2023 is mostly virtual. So first you need to understand that how can you improve your virtual presence. Now the steps, first is registration, then is the audition, then audition report, participate. Training sessions आपकी once in a week होंगी. Along with these training sessions, you'll also be appearing for talent rounds. About these talent rounds we'll be discussing in detail कि हर एक talent round में आपको किस basis पे judge किया जाएगा. Because when you appear for audition, we told you that only and only if you are passionate about being here on the platform, you will be shortlisted. It does not matter whether you have an experience or you do not have an experience with respect to this industry. We will be selecting you purely on the basis of your passion.
But now that we are preparing you in your next session, your image consultant are going to train you and going to help you. That how can you present yourself efficiently. आप कैसे खुद के बारे में बात कर सकती हैं एक क्लैरिटी के साथ. मेकअप कंसल्टेंट आपको बेसिक मेकअप सिखाएंगी कि आप जल्दी में खुद का मेकअप कैसे कर सकती हैं. If you want to dress up for a ramp, how you should doing your makeup, ramp walk expert is going to explain you practically everything regarding ramp walk. Gradually आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद आपके टैलेंट राउंड्स होंगे जिसमें on the basis of your presentation, the way you are presenting yourself, the way you are dressed up, and how confident you are in your presence skills. The jury and other members are going to judge you, and at the end of these 3 talent rounds, which means आपको 3 chances दिए जाएंगे अपने आप को prove करने के लिए. इन तीनों talent round के बाद we will be, please just a minute. Yes, sorry, I got a call. So yes, so आपको 3 chances मिलेंगे and तीनों talent round के बाद we will be shortlisting city representatives. For example, if you belong to Mumbai, you'll get the title of Miss Mumbai, Mrs. Mumbai, Miss Teen Mumbai, and Trans Queen Mumbai, etc. So मुंबई से एक runner up भी select होगा and एक subtitles holder भी select होगा. So दिल्ली से भी same process होगा. इसी तरह हर city से सिटी विनर्स के लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स चूज किए जाएंगे एंड उसके बाद इन्हीं सिटी रिप्रेजेंटेटिव से हम स्टेट फाइनलिस्ट का सिलेक्शन करेंगे. यानी यहाँ तक का कंप्लीट प्रोसेस वर्चुअल होगा. ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड इफ यू बिकम सिटी विनर्स यू वुड बी कमिंग टू दिल्ली फॉर स्टेट लेवल. आपको दिल्ली आना होगा. 3 डेज का स्टे होगा आपका रेडिशन ब्लू होटल में एंड यू विल बी क्राउन्ड एज अ सेलिब्रिटी. यानी कि ये इवेंट ऑफलाइन होने वाला है बिकॉज यू हैव टू एक्ट लाइक अ सेलिब्रिटी फ्रॉम डे 1. Because the media is going to be there. आपको national level पे media coverage मिलती है. आपको बहुत सारे लोग जानेंगे. बहुत सारे लोगों के सामने आपको perform करना होगा. Of course, the other winners are going to be there. The trainers are going to help you in identifying your strength and amplifying them. Now, as I have already mentioned that in each talent round, you will be judged on the basis of various skills and various talent. So please, please, please do not compare yourself to each other. आपको एक दूसरे के साथ कोई comparison करने की जरूरत नहीं है. वो इतनी अच्छी रैंप वॉक कर रही है, उसका इतना अच्छा ड्रेस है, उसके स्टेलेटॉज अच्छे हैं, उसने मेकअप बहुत अच्छा किया है. All of us are unique human, and trust me, Pride of India is going to support you in embarrassing your uniqueness. And one more important thing, आपको हर टैलेंट राउंड में जूरी मेंबर्स स्कोर करेंगे 1 to 10 एंड वो स्कोर आप तक पहुंच जाएंगे. फर्दर आपके टीम मेंबर्स आपको कंफर्म करेंगे वेदर यू आर सेलेक्टेड एज अ सिटी रिप्रेजेंटेटिव और नॉट. इवन सिटी रिप्रेजेंटेटिव पे सेलेक्ट होने के बाद आपको एक प्रॉपर गूगल रैंकिंग प्रोफाइल भी मिलेगी. पीपल कैन सर्च यू ऑन गूगल एज अ सेलिब्रिटी. आपके लोग आपको कोई भी गूगल पे आपके नेम से सर्च कर सकते हैं सिटी विनर्स के टाइम पे ही. इवन आपको प्रॉपर मीडिया कवरेज मिलेगी. मीडिया आपका इंटरव्यू लेने आपके घर पे भी जाएंगे. सो ओवरऑल ये एक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक फेम दे रहे हैं आपको, एक लिमलाइट वर्ल्ड में ला रहे हैं टुवर्ड्स योर जर्नी. अगर आप इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स फॉर मॉडलिंग या किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, ये पूरा ईयर आपका बहुत ही मेमोरेबल ईयर हो जाने वाला है टिल नेशनल्स. सो ये टैलेंट राउंड की डिस्क्रिप्शंस हैं. जो इसे देखकर पैनिक नहीं होना है. यू जस्ट need to understand how the process is going to be. ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी और हर ट्रेनिंग सेशंस में as we move forward हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे. So right now we are just giving you an overview ताकि आपको एक आइडिया लग जाए of what the preparation needed to be done for. So पहले तो let me clear your bubbles here. अपने फ्लैट्स को, अपने स्नीकर्स को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है. It's going to be all about your lovely heels now. So there is no escape. इससे आप भाग नहीं पाओगे. This is something I'm giving you an honest advice on. Stilettos are necessary. No shoes, no sneakers, and no wedges. Now only and only stilettos and pencil heels. And pencil heels भी आपके minimum 3 inches to 6 inches. So please make sure that you invest your money in buying a good heel. And try to purchase a color जो आपने हर outfit के साथ चल जाए. Like it could be black or it could be a good shade of nude. That is clear. Nude color or peach color. That would be okay.
कोई भी स्किन टोन कलर की हील्स या ब्लैक हील्स आपकी किसी भी ड्रेस पे आप वियर कर सकती हो। मिनिमम 3 इंचेस से स्टार्ट कीजिए। यू नीड टू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टेलेटॉस में। एंड यस, आपको रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी जाएगी, बट वो ट्रेनर इसी पर्सपेक्टिव से आएगा कि आपको हील्स में एटलीस्ट चलना आता हो। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो अगर मैं आपको रियलिटी पोर्ट्रे करूं, तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एंड एटलीस्ट आप डेली कोशिश कीजिए हील्स वेयर करके थोड़ा आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स वॉक कीजिए। सो ट्रस्ट मी, इट गोना हेल्प यू। आप गिरोगे, संभलोगे, बट दैट इज हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी, राइट? सो इवेंचुअली आपके ट्रेनर जब ऑन बोर्ड आएंगे, आपको बिगिनर लेवल पे भी वो टीच करें, तो बेसिक आपको हील्स में चलना आना चाहिए, बिकॉज हील्स में चलने में और हील्स में रैंप वॉक करने में बहुत टेक्निलिटीज लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है, and that is where you need to be prepared for. So these are some points that you need to keep in mind. And when I say stilettos and pencil heels, it is directly no for wedges and block heels. So I hope it's clear. अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो प्लीज आप अपने अकाउंट मैनेजर के टच में रहिएगा, विल शेयर सम रेफरेंस। बट अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो जो पेंसिल हील्स होती हैं, सिंपल, इट वुड बी लाइक 3 to 6 inches, start from 3 inches. Why do I say this? I didn't mean to scare you, because this is reality. इससे कोई भाग नहीं पाएगा, and I want you guys to be very very sure that you want to do this. और ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई सिखाएगा, उससे पहले खुद आप उसे ऑनबोर्ड कीजिए, ताकि जब आपके ट्रेनर्स आए तो उससे पहले आप खुद मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। So I hope you understand what I'm trying to say, right? So let's talk about the talent rounds. Why am I emphasizing on heels? Because हर round में, हर talent round में ramp walk plays a lead role. First, आप ramp walk आपने की थी audition में, but that is just 1% of what you are going to do now. So let's start with talent round 1. I would like to highlight few points. Dress code, dress up according to your personality. Casuals नहीं होने चाहिए, because you are on a platform जिसपे आपकी dressing sense को importance दी जाएगी, and it will be noted and appreciated. And मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि ये एक ही तरह का ड्रेस कोड पहनना है. It has to be presentable. आपके अकॉर्डिंग आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा लगे, आपको बाकी लोगों से डिफरेंस, थोड़ा यूनिकनेस बनाए रखना है, because every time you come on a screen you are being noticed. So dress up best. Talk about your aspiration. Why do you want to win the crown? This is about first talent round. मैं ये first talent round का बात कर रही हूँ. First one was dress up, and second is you have to talk about your aspiration. आप crown क्यों जीतना चाहती हैं? उसी क्वेश्चन को थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आप एड्रेस करोगे, but it has to be elaborated. कुछ लोगों ने बोला था लाइक ऑडिशन में भी कि ये आपका ड्रीम है, आपका सपना है, लेकिन ये आपका सपना क्यों है? So talk about your aspiration with clarity about where you want to see yourself with crown. आप crown जीतने के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? तो secondly, highlight the details about your ideal. आपके जो भी इंस्पिरेशन है इस फील्ड से रिलेटेड, आपके यू कैन नेम एनीवन जिन्हें देखने के बाद आपके माइंड में क्राउन का इंस्पिरेशन ट्रिगर होता है, एंड इट कैन नॉट बी एनीथिंग, इट शुड मेक अ सेंस। आपके इसी फील्ड से रेलेवेंट कोई भी, प्रियंका चोपड़ा हो गई, अभी हरनाज कौर संधू जो मिस यूनिवर्स, सो दे कैन बी एनीवन जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, जिसे देखने के बाद आपको ये लगता है ओ मुझे भी ये इंडस्ट्री चूज करना चाहिए। तो आफ्टर योर टैलेंट राउंड इज डन, जूरी विल कनेक्ट विथ यू. So this was like your first talent round. Second talent round में showcase your talent. It means आपको represent करना है अपने idol को, जिन्हें आपने first talent round में name लिया था, उनके बारे में आपको उन्हें represent करना है by dress up or by an acting or by any such thing. आपको, जैसे आपने प्रियंका चोपड़ा बोला, तो आपको प्रियंका चोपड़ा के, या तो आप प्रियंका चोपड़ा के किसी मूवी के सीन को रिक्रिएट कर सकते हो, लाइक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, या फिर उनके जैसा आप कुछ ड्रेस वेयर करके कि देखने के बाद एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए कि हाँ शी इज रिप्रेजेंटिंग प्रियंका चोपड़ा. ओके, सो आपको कोई भी उन्हें रिप्रेजेंट करना है, सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस. सो नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टैलेंट राउंड, इट वुड बी अबाउट योर रैंप वर्क. इसमें दो चीजें आपकी प्राइमरी जज होंगी. फर्स्ट इज योर मेकअप एंड सेकेंड वन इज योर रैंप वर्क एंड योर अटायर. And again, interaction with the jury members, they'll connect with you according to your performance. तो आप लोग इतने nervous जो at the end,
और जस्ट डोंट गेट नर्वस, हर टैलेंट राउंड से पहले आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा प्रॉपरली। ये आपका ट्रेनिंग जो फर्स्ट राउंड है जो मैं अभी कंडक्ट कर रही हूँ, ये ओवरऑल मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि इसके बाद क्या है। इसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग सेशन होगी फर्स्ट जो मैंने बोला, तो उसके बाद उसका आपका फर्स्ट टैलेंट राउंड होगा, देन सेकंड ट्रेनिंग सेशन सेकंड टैलेंट राउंड, एंड थर्ड ट्रेनिंग सेशन थर्ड टैलेंट राउंड, एंड उसके बाद हम सिटी विनर्स को अनाउंस करेंगे। तो यस, वन मोर थिंग, एज आई सेड, कोचिंग सबको मिलेगी, लेकिन विनर बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को ये लगता है बहुत इजी है, बट इट्स नॉट दैट इजी। जब आप सिटी लेवल पे पहुंचते हो, स्टेट लेवल पे पहुंचते हो, इट्स नॉट अबाउट द क्राउड। काफी लोग होते हैं जो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको लाइक सोशल मीडिया पे ही देख लो, आपको काफी ऐसे लोग, हजारों लोग फॉलो करेंगे, बहुत लोग, तो कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू रिप्लाई। लाइक मैं भी स्टार्टिंग लास्ट ईयर आई वाज अ इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर, मैं खुद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की विनर थी। सो आफ्टर सडनली इतने ज्यादा फेम, इतने ज्यादा लोगों के मैसेज, तो कहीं ना कहीं मुझे उन्हें रिप्लाई तो करना था। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। लाइक जैसे आप सिटी लेवल विनर्स में आओगी, आपको मीडिया कवरेज मिलेगा, काफी लोग जानेंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट, एंड कोई भी डाउट हो आप अपने टीम मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इन ऑल दिस योर वर्चुअल प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट. So there are a lot of things that you need to take care about while we are talking about your virtual presence. First and most important part is sustain your energy. आप किस एनर्जी लेवल से अपने आप को ऑडियंस के सामने दिखाना चाहते हैं? हर पार्टिसिपेंट का एक अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन उस एनर्जी लेवल को सस्टेन, उसे मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक द राइट न्यूट्रिशन। ये आपके लिए एक प्रिपरेशन है। यू नो आई ऑलवेज टेल माय कंटेस्टेंट्स कि आप एक बनाना खा के आए, एक ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, या ऐसी कोई चीज जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो बिफोर एवरी ट्रेनिंग सेशन एंड एवरी टैलेंट राउंड, ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में ये खत्म हो जाने वाला है। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 months आपको लगेंगे ये सारी डिटेल्स में सीखने में ये चीजें। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारी एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहे। उससे ग्रेजुअली क्या होगा कि जब आप लास्ट में फिनाले में आएंगी एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, सो हमें यही सोचकर आगे बढ़ना है कि आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एंड उसके बाद सिटी को रिप्रेजेंट करने के बाद आप दिल्ली में आने वाले हैं, 2 to 3 days यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ आपको 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करना होता है, रिहर्सल्स होंगी आपकी, और आप वो सब तभी कर पाएंगे जब आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन होगी। तो टुडे ऑनवर्ड्स मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनिस्ट आएंगे जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी, लेकिन आपकी तरफ से आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो। और नाउ सेकंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा. Your camera should be stable. As I told you a lot of times in audition round, मैंने हर किसी को audition round में आपको रिमाइंड किया है कि आपका कैमरा मूव करता है, so कैमरा स्टेबल होना बहुत जरूरी है. Trust me, it is very distracting for the audience and jury members also. So please make sure कि आप अपना कैमरा प्रॉपर स्टेबल रखें. एक सेटअप कीजिए, keep it on a table या प्रॉपर कैमरा स्टैंड. Okay. So third is position on the screen. Make sure that when you are sitting in front of camera, आपके हेड के ऊपर 2 inches का डिफरेंस होना चाहिए. एग्जाम्पल, अभी मैं कैमरा मैंने रखा है, तो अगर मैं मूव करती हूँ तो ये प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं है. तो आपको हमेशा एक डिस्टेंस में आपको साइड वाइज देखना है कि आप प्रॉपर हमें एटलीस्ट यहाँ तक आप प्रॉपर हमें दिख रही है, विजिबल हो. लाइक जब आप नॉर्मली बैठकर हमसे बातें कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रही हो, तो आप प्रॉपर विजिबल होने चाहिए. आपके तीनों साइड से ऊपर से डिस्टेंस एक होना चाहिए. तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है. अलोंग विद दिस आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. तो एवरी वन मोर थिंग, आपका जो ड्रेस का कलर होगा एंड बैकग्राउंड का कलर होगा, यू कैन कीप इट इन कॉन्ट्रास्ट. तो लाइक आपका ऐसा ना कि किसी ने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड भी है, आपने व्हाइट ड्रेस भी पहन लिया है. अगर आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो आपको डार्क कलर का ड्रेस पहनो. अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो आप लाइट पहन, वो एक अलग सा मींस इंप्रेशन लगता है, स्क्रीन पे देखने में बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी. तो नाउ जो भी मैंने बताया, एनी ऑफ द थिंग्स जो आपको समझ ना आया हो, इफ यू वांट टू आस्क मी, आप पूछ सकते हो मुझसे. विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस. थैंक यू.
आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकती हो अभी। तो सुरभि मैम यहाँ पे आप लोगों के साथ अभी हैं। आप लोग इनसे ऑडिशन राउंड में आई थिंक मिले होंगे। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? ओके, सो बाकी जितनी चीजें मैंने आपको यस हाय मैम। हाय अनुष्का। मैम आई वाज सेइंग दैट जब ये ट्रेनिंग राउंड होगा तो ये ट्रेनिंग सेशन कब से स्टार्ट होगा? और ट्रेनिंग सेशंस आपके देखिए 15 अप्रैल को आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अगर देखा होगा डीके पेजेंट की पेज पे, तो 15 को आपका ग्रैंड लॉन्च होने वाला है, जो कि मीडिया कवरेज बहुत ही बड़ी नेशनल लेवल पे होने वाली है। उसके तुरंत बाद से आपकी एक और आपको पहला ट्रेनिंग दिया जाएगा फर्स्ट टैलेंट राउंड के लिए। देन फर्स्ट टैलेंट राउंड होगा, तो एक वीक के अंदर आपकी एक ट्रेनिंग और एक टैलेंट राउंड हो जाएगा। ओवरऑल 15 अप्रैल के बाद 3 वीक्स के अंदर आपके तीनों टैलेंट राउंड एंड तीनों ट्रेनिंग्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद सिटी लेवल्स विनर्स अनाउंस किए जाएंगे हमारे। ओके, सो सिटी लेवल विनर्स में क्या होगा, सिटी लेवल भी वो चीज आपको आगे एक्सप्लेनेशन आपको बाकी डिटेल्स में दी जाएंगी। सो मैं आपको एक नॉर्मल एवरेज आइडिया दे दूं कि सिटी लेवल के टाइम पे आपका ग्रूमिंग एंड सेशंस तो जो भी हैं ऑनलाइन ही जा रहे हैं अभी, एज आई टोल्ड यू सिटी लेवल भी हम ऑनलाइन ही अनाउंस करेंगे, बट वो पूरे के पूरे मीडिया कवरेज में होगा। मीन्स ओवरऑल जो एक आपको प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मिलता है, आपको एक पूरा मीन्स एक होता है फेम एंड रिकॉग्निशन, वो आपको सिटी लेवल से ही मिल जाएगा। लाइक सिटी लेवल से आपके सिटी के आपके पूरे स्टेट के लोग आपको जानेंगे, क्योंकि नेशनल मीडिया टेलीविजन पे आपके विनर्स जो भी होंगे, हम आपसे फोटोज लेंगे, आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन लेंगे, वो सब दिखाए जाएंगे। नेशनल टीवी मीडिया पे आपके लोकल मीडिया हाउस में वो फोटोज दिए जाएंगे जो आपके न्यूज़पेपर पे कटआउट्स आएंगे। तो उसके बाद आपके जो लोग हो गए, मीन्स आपके एरिया के फोटोग्राफर्स हो गए, काफी लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फॉर फोटोशूट्स या फॉर प्रमोशन के लिए। तो ओवरऑल सिटी लेवल पे आपको इवन गूगल रैंकिंग भी मिल जाएगी। सिटी लेवल से आप अपने आप को गूगल में देख सकती हैं। सो आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग, सॉरी दिस आप टैलेंट राउंड्स, क्योंकि टैलेंट राउंड्स बहुत जरूरी है। आपका सबसे मेन है टैलेंट राउंड आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अभी से माइंड में रखना है कि आपको लाइक एज ए टोल्ड यू आपको रिप्रेजेंट करना होगा अपने आइडल को। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको किस आइडल को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड सेकंड इस टेलीटॉक जो मैंने आपको यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मैम। हाय शगुन, गुड आफ्टरनून मैम। आई जस्ट आस्किंग कि मैम जैसे स्किन केयरिंग, हेयर केयरिंग एंड पर्सनैलिटी केयरिंग मतलब बिफोर राउंड हम कैसे करें? ओके, इस चीज के लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी जो इमेज कंसल्टेंट, अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन आपका होगा 15 अप्रैल के जस्ट 1-2 दिन के बाद ही आपका होगा, जिसमें आपकी जो इमेज कंसल्टेंट होगी वो सारी चीजें बताएगी। तो उनसे आप ये सारी क्वेरीज आप पूछ सकेंगी कि आपको अपना केयरिंग, अभी स्किन केयरिंग आपको कैसे करना है। एंड एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रिशनिस्ट जो आएगी वो आपको डाइट के लिए प्रॉपर ट्रेन करेगी, क्योंकि आपको हेल्थ भी बहुत मेंटेन करके चलना है। एज अभी समर सीजन है आपका, सितंबर में सिटी लेवल चलो आपने क्रॉस कर लिया, सितंबर में आपका स्टेट लेवल होगा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिल्ली में गर्मी होती है। तो यू हैव टू सस्टेन एनी हाउ, आपको अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखना है पूरे सारी प्रोसेस के टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे अभी। पहले हम क्या मेंटेन करके रखें? इससे पहले हम किस चीज को मेंटेन करके रखें? एग्जैक्टली आपको अभी से वो चीजें हैबिट्स में लाने हैं डेली, ठीक है? मैम हील का तो मैं समझ गई कि हील मतलब हमें हील के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैम और कुछ के लिए हम कुछ प्रैक्टिस करके रखें, पहले से प्रिपरेशन करके एज आई रखें? टोल्ड यू, टैलेंट राउंड्स में जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टैलेंट राउंड्स हैं, फर्स्ट वुड बी लाइक आपको इंटरेक्ट करना है प्रॉपर, आप क्यों विन कर रहे हो। तो फर्स्ट डे इट वुड बी लाइक आपको डिटेल में अपने बारे में चीजें बतानी है और आप क्यों क्राउन को जीतना चाहती हो। एंड जो भी हमारी जूरी मेंबर्स उस दिन, वो ऑडिशन राउंड से डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज इट इज अ टैलेंट राउंड। सो एज आई टोल्ड यू, टैलेंट राउंड के अकॉर्डिंग ही आप सिटी विनर्स जज की जाएंगी। तो आपको उस दिन आपको किससे अपना आइडल मानती हैं, तो ये सारी चीज आपको पहले से माइंड में रखना है ओवरऑल रेडी होकर, कि उस टाइम पे आपको सडनली अगर ये चीजें हो, सडनली आप कोई चीजें बोले तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि आपको फर्स्ट टैलेंट राउंड के बेसिस पे ही आप सेकंड टैलेंट राउंड पे आप उन्हें रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट? तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप किसी को अपना आइडल बोलते हो, सेकेंडली कि हमारी जूरी मेंबर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल वेल प्रिपेयर्ड होना है, कि ऐसा ना हो कि आपने पहले उनका नाम तो ले लिया बट आपको पता ही नहीं है कि वो किस चीज में विन किए हैं या कोई भी चीज।
अगर वो इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको उनके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको जाना है, उनसे रिलेटेड मीन्स आपको इंफॉर्मेशन रखनी है माइंड में, ठीक है। अर्पिता वाज आस्किंग अबाउट द ड्रेस कोड। अर्पिता, एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला कि ड्रेस कोड कंपलसरी वैसा कुछ भी नहीं है, बट यस आपको कोई ऐसा ड्रेस वियर करना है जो आपको बाकी लोगों से यूनिक बनाए। कैजुअल्स वियर नहीं करने हैं, ओके। यू डोंट हैव टू वियर कैजुअल्स दैट आप कैजुअल वियर करके स्क्रीन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टैलेंट राउंड जो कि आगे भी अपलोडेड होगा। एंड अगर आप स्टेट लेवल पे जाओगे तो ये मीडिया में भी आपके टैलेंट राउंड्स को हम कट करके देते हैं। तो ये चीजें आप प्लीज माइंड में रखना है आपको। कोई भी आगे ड्रेस कोड के रिगार्डिंग तो आपको कोई इशू नहीं है। एज ए टोल्ड यू, आप लॉन्ग स्कर्ट या लॉन्ग फ्रॉक वियर नहीं करना है। आपको कुछ ऐसा लाइक यू कैन वियर जीन्स टॉप, थोड़ी स्टाइलिश में आप जा सकते हो। वन पीस यू कैन वियर वन पीस, बॉडीकॉन वन पीस, नो फ्रॉक्स एट ऑल। फ्रॉक्स वियर नहीं करने हैं। फर्स्ट फ्रॉक्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम रैंप वॉक को जज नहीं कर सकते राइट फ्रॉक में। सो ये सारी चीजें कुछ कुछ आपको माइंड में रखना है। बाकी अगर आपको कोई सैंपल्स चाहिए तो वो आप अपने टीम मैनेजर आकांक्षा को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डिटेल बता देगी कि किस तरह की आपको ड्रेसेस वियर करनी है, क्या वियर करना है, ये सारी चीजें। एनी अदर क्वेश्चन? ओके अर्पिता, वेलकम। ये शगुन, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मतलब मैम आई जस्ट फॉरगेट। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, नर्वस में ना बोलिए। कोई भी आपको क्वेरी हो शगुन, आप कभी भी यू कैन रीच मी, आप मुझे भी कभी रीच कर सकती हो, कभी भी टीम मैनेजर से पूछ सकती हो, ठीक है। और हाँ, कभी भी कोई भी आपको इशू हो आप डायरेक्टली टीम मैनेजर से कांटेक्ट कर सकती हैं। आइडल होगा तो मैम उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा या दैट्स बस मतलब नॉट हिस्ट्री बट लाइक अगर मैं बात करूं हरनाज कौर संधू की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मिस यूनिवर्स 2021 में विन की थी। एंड उससे पहले वो 2020 में मिस दीवा भी जीती थी। तो अगर आप उनके बारे में बता रहे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि वो किस किस चीज में विन की हैं। ओके, तो ये सारी चीजें ही मेन आपको डिटेल में रखना है। यस, एनी अदर क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। फर्दर आप अपने टीम मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? ओके, सो एवरीवन ऑल द बेस्ट। एंड आगे आपके नेक्स्ट सेशन आपकी इमेज कंसल्टेंट आपको ट्रेन करेंगी, उस चीज के लिए जस्ट गेट प्रिपेयर्ड। एंड all the best to everyone from my side. Yes, Surbhi ma'am will tell you a few things now. हेलो, Hi ma'am. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी। वैसे तो गरिमा ने काफी चीजें बता दी है जो बहुत हम लोग, मैंने भी काफी ध्यान से सुनी है। सिर्फ इतना चीज कहना चाहूंगी अभी, आई थिंक Yes. हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी जितना आपके पास टाइम है तो कोशिश करिए मॉर्निंग में अपने आप को 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए अभी से, ताकि थोड़ा सा मेंटेन हो सके घर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप घर पे कर सकते हैं। सिर्फ बाकी चीजें गरिमा ने बहुत सही कही हैं। और सिर्फ एक चीज बोलना चाह रही थी मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। आप जैसे थोड़ा सा, जैसे कभी कभी किसी का पेट निकला हुआ होता है, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में अगर चाहें तो 15 मिनट आप उठ के खाली पेट, एक जैसे मॉर्निंग में आपने एक ग्लास गर्म पानी पिया और उसके तुरंत बाद आपने लेट के एक मैट पे एक्सरसाइज करनी है। और आजकल तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, लाइक गूगल पे आप देख सकते हैं पेट कैसे कम करना है, उसके रिगार्डिंग आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी काफी सारी। तो वो कोशिश करिए कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालिए मॉर्निंग में। जितना टाइम आप सोशल मीडिया को देते हैं उतना टाइम अपने हेल्थ के लिए नहीं निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज ए टोल्ड हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आप क्या डाइट ले रही हो, कितने अमाउंट में आप कैलोरीज, कितने अमाउंट में आप न्यूट्रिशन ले रही हो, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखनी जरूरी है इस पूरे ईयर एटलीस्ट। क्योंकि आप में से ऑफ कोर्स मैं तो चाहूंगी कि आप सब नेशनल्स पे जाओ, बट आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। सो आप में से बहुत सारे फेसेस नेशनल्स पे देखने को मिलेंगे मुझे, तो मैं यही चाहूंगी कि आप सब वहां तक के लिए प्रिपेयर रहो, नेशनल्स तक के लिए। Okay, so all the best everyone. Thank you so much Surbhi ma'am for joining us. And the rest further detail आप अपने टीम मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे की नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन का जल्द बता दिया जाएगा। ओके ओके मैम। ओके।